آپ اس چیز کو کیسے فیل کرتے ہیں؟ جوان ہو گئے ہیں، ابھی زمینداری کاروبار وہی کرتے ہیں. کیا آگے چل کر لوگوں کو ریلیف دے سکے گا؟ جو اس کے ہاتھ میں تھے بلدیہ میں دیے یا فوڈ میں دیے، ہزاروں میں دیے. السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا اپنا ہوسٹ امام دین جنجنی پروگرام آج کی شخصیت کے ساتھ. ناظرین، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ پروگرام میں اس پرسنالٹی اس شخصیت سے ملایا جائے جس کا اپنا ذاتی بیک گراؤنڈ بھی ہو، سوشل ایکٹیویٹی ہو. تو الحمدللہ آج ہمارے پروگرام میں ایک ایور گرین پرسنالٹی، ینگسٹر پرسنالٹی آغا عاشق علی خان پٹھان آج ہمارے پروگرام میں مہمان ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر فرسٹ آف آل آپ کی مہربانی، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا. آپ نے پالیٹکس کو چوز کیا، آپ نے پالیٹکس کو ایک ہوتا ہے کسی کا خواب ہوتا ہے کہ مجھے پالیٹکس کرنا ہے، ایک ہوتا ہے اپنے خاندان کی روایت کے مطابق کہ اپنے حلقے کے حساب سے کھڑا ہونا پڑتا ہے. تو آپ نے پالیٹکس کو کس لیے چوز کیا؟ السلام علیکم. وہیں آپ کی بڑی مہربانی جی سر. جو آپ نے آئے، دوستوں نے ٹائم دیا ہمارے ساتھ، اسی بہانے کچھ اپنے خیالات سنائے، کچھ ہمارے خیالات سنیں گے. جی سر. اس لیے آپ نے سوال کیا کہ پالیٹکس کو کیوں چوز کیا. سر میری پالیٹکس کو اس وجہ سے میں نے چوز کیا، اس سے پہلے جو بھی ہمارے یہاں سسٹم تھا وہ ایک ہمیں اچھا نہیں لگ رہا تھا. وہ کیوں نہیں لگ رہا تھا؟ کہ اس کو مسپلیس کیا جا رہا تھا. اس وجہ کوئی حکومت کی طرف سے ہر چیز میسر ہوتی ہے. بالکل ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. اس کو یعنی کہ اصل جگہ جو اس کو کام کرنا چاہیے وہاں وہ کام نہیں کرتے تھے. وہی اپنے ہمارے وڈیرے بوتار سردار نواب اپنے ڈیرے بنا دیتے تھے. اسکول کی بلڈنگ بن گئی، اس میں اس کے بیل کھڑے ہوئے ہیں، جانور کھڑے ہوئے ہیں. اس طرح سے یہ چیزیں مسنگ ہو رہی تھی. پھر ہم نے ترجیح دی کہ بھائی کیوں دوسرے کے پیچھے لگیں، جب عوام بھی لوگ بھی ہمیں چاہ رہے ہیں، ہمارے ساتھ ہیں، کیوں نہیں ہم ان کے نمائندے بن جائیں. اس وجہ سے میں نے پہلے فرسٹ اپنے لوگ علاقے حلقے کے لوگوں سے میں نے پوچھا کہ بھائی آپ لوگوں کو اگر میں پسند ہوں تو میں اس چیز پہ آ جاؤں. ٹھیک ہے. جو آپ چاہتے ہیں، جو آپ نہیں چاہتے تو مجھے کوئی شوق نہیں. اسی وجہ سے یہ میری عوام کی یعنی کہ ایک فرمائش تھی، خواہش تھی کہ صحیح آپ آ جائیں، تبھی مجھے پولیٹک میں آنا پڑا. اچھا، فرسٹ ٹائم آپ جب الیکشن میں کھڑے ہوئے تھے، کیونکہ یہ آپ کا فرسٹ ٹائم کا پریشر تھا، اور دوسری بات یہ کہ آپ نے اگلے بندے کو کم کر کے خود آپ آگے آئے، تو آپ کتنے حد تک مطمئن تھے کہ میں جیت جاؤں گا یا نہیں جیتوں گا؟ اگر نہیں جیتوں گا تو کیا ہوگا؟ یہ تھوڑا انسان کو نا ہوتا ہے، اپنے ذہن کا جو خوف ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. تو آپ کتنے مطمئن تھے؟ سر جیسے کہ میں نے فرسٹ اسٹیپ اس چیز میں جب میں نے رکھا اور جب میں اپنے حلقے میں نکلا تو جو لوگوں کا ایک تو ہوتا ہے نا ووٹ ڈالنا، ہاں، ایک ہوتی ہے کہ یعنی کہ دلی محبت. جب میں اپنے حلقے میں نکلا تو لوگوں کی جو میں نے دلی یعنی کہ وہ محبت دیکھ رہا تھا نہیں، اور اپنے اللہ کی ذات پہ یقین تھا. میں نے بولا یار، کیونکہ مجھ سے سارے غریب طبقے کے جو لوگ تھے، ہاری مزدور نوکری پیشہ، وہ لوگ مجھ سے یعنی کہ ایک جو مل رہے تھے وہ ان کا اپنا ایک محبت کا انداز تھا. اسی وجہ سے میں یعنی کہ جب بھی گھر واپس آتا تھا تو ہم بیٹھتے تھے آپس میں دوست گھر والوں کے ساتھ، تو میں دلی یعنی کہ مطمئن ہوتا تھا. میں نے بولا بھائی ہار جیت اللہ کے ہاتھ. اور پیپلز پارٹی کو چوز کرنا، آپ اس پارٹی سے کتنا مطمئن ہیں؟ سر یہ جو پیپلز پارٹی ہے اس سے ہمارے یعنی کہ آج کا تعلقات نہیں ہے، بس جب یہ پیپلز پارٹی بنی اس ٹائم سے تعلقات ہے. اچھا. کیونکہ ہمارے دادا لوگ، میرے دادا کے بھائی تھے آغا غلام نبی خان، جیسے میں نے آغا طارق خان تھے،
हमारे गांव में मरहूम लाला जहांगीर खान था, जी जी। उनको गाजी बन गए, गोलियां खाई। हाँ। हमारे लोग में ऐसे भी, हमारे गांव में ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने MRD की तहरीक में कोड़े खाए, पीपल्स पार्टी के लिए अपनी जानें दी। मेरा कज़न था आगा तैमूर खान, जो यहाँ के हमारा MPA भी बना हुआ था। फिर उसकी कुछ अपनी वजूहत थी जिस वजह से उसने पीपल्स पार्टी को अलविदा किया। अब एक के फैसले की बजाय से हम अपनी इतनी सारी कुर्बानियाँ तो नहीं छोड़ सकते थे। नहीं, पार्टी में जब आना था तो दूसरी भी पार्टियाँ थी। हालांकि हमारे इलाके में पार्टी की भी है मगर शख्सियत को भी जाना जाता है। बिल्कुल ऐसे होता है। तो हमने बोला कि जब ने हमने एक पार्टी को इतना वक्त दिया हुआ है, उसके लिए जाने दी हुई हैं, उसके लिए कोड़ों तक यानी कि लोगों ने उठाए हुए हैं, तो क्यों ना हम अपनी उसी पार्टी को फॉलो करें और उसी के हाथ यहाँ मजबूत करें कि भाई जिन लोगों ने पीपल्स पार्टी का नाम डुबोया हुआ था, पीपल्स पार्टी गलत नहीं है, सही। लोग गलत होते हैं जो पार्टी में होते हैं और वो पार्टी का नाम बदनाम करते हैं। हम अवामी लोग थे, अवाम ने हमें चाहा, हम इसीलिए पीपल्स पार्टी का झंडा लेके मैदान में उतर गए। अच्छा सर, शार्ट ब्रेक का इशारा मिल रहा है। नाज़रीन हमारे साथ रहेगा, हम अपने सिलसिले को वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से छोड़ा था। प्रोग्राम ज़िंदगी सां गॾु ऐं है माजिद अबड़ो। अॼु असांजे स्टूडियो में महिमान आहिनि सरदार अली रिनो गारी साहब। साईं जन सां ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो रखूं पिया। तव्हांजे नज़र में पॉलिटिक्स कीअं आहे? पॉलिटिक्स जेका आहे असां वटि नज़रियाती जेका पॉलिटिक्स रही आहे त उन जो वॾो फुक़दान आहे। जॾहिं स्टूडेंट्स माहौल में ड्यूरिंग स्टडी ये पॉलिटिक्स इन्वॉल्व कई वञे त मां सम्झां थो त मुतासिर थिए पई तालीम। वेलकम बैक नाज़रीन, हम अपने सिलसिले को वहीं से स्टार्ट करते हैं जहाँ से छोड़ा था। आज हमारे प्रोग्राम में बरेली पर्सनालिटी आगा आशिक अली खान पठान साहब प्रोग्राम में माने। अच्छा सर, फ्लड के दौरान क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान हुआ, फ्लड के अंडर कंसीडर पीपल्स पार्टी का जो किरदार था वो कितना बेहतर था? देखिए यहाँ फ्लड जो आया वो इतनी यानी कि सोच से बाहर था कि जिसका आप और हम अंदाजा करें। सही बात है। और एट अ टाइम ये हमारे यहाँ पहले भी 2010 में भी पता था कि आपको कि फ्लड आया था। जी। मगर वहाँ क्या हुआ कि हमारे लोग इस इलाके को छोड़ के निकल गए थे। सही। अब भी ये बरसाती जो सिलसिला था इसमें लोग भी मौजूद रहे, हर चीज़। अब एट ए टाइम यानी कि हज़ारों लाखों की तादाद में लोग डिस्टर्ब हुए, तो अब उनको यानी कि मैनेज करने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि ना ये किसी को पता था कि इतने टेंट होंगे या राशन, इसमें यानी कि थोड़ा वो होता है। जो लोगों ने ये समझा कि यार पार्टी या हुकूमत हमसे यानी कि ताउन नहीं कर रही, मगर उन्होंने किया, मगर हुकूमत को और पार्टी को थोड़ा टाइम का स्पेस वो चाहिए था, जो यानी कि जैसे जैसे वो टाइम मिलता जा रहा था वो यानी कि हम बेहतरी की तरफ काम करते जा रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी जैसे कि वो भी वहाँ से कोई भी रसाई हमें 4 दिन 5 दिन लग जाते हैं या 10 दिन समथिंग लग गए। अल्लाह ने हमें अपना भी बहुत कुछ दिया है, तो हम इस दौरान यानी कि अपने ज़ाती जेब से खर्चा कर रहे थे, जो भी हस्बे तौफीक था, खाना हो गया, रिहाइश हो गया। उन दिनों में आप आते तो आज जैसे बैठे हुए हैं यहाँ पर इस मेरी जगह में भी आपको ये सारे जो हैं ये बरसात मुतासिर वही नज़र आते हैं। अच्छा सर, यहाँ पे इम्तियाज़ शेख साहब का किरदार कैसा है? बिल्कुल मोहतरम इम्तियाज़ शेख साहब अच्छे इंसान है, मेरा ज़ाती उनके साथ ताल्लुकात है। वो एक जैसे ना बोलते हैं कोई नॉलेज वाला, इम्तियाज़ अहमद शेख साहब नॉलेज वाले बंदे, वो इस चीज़ को जानते हैं
हर चीज़ तो भाई कोई काम प्रॉपर कैसे करना चाहिए। एक तो भाई होते सियासत में आ गए ख़ानदानी बड़े रेशरे, वो सिर्फ साइन करते हैं। इम्तियाज़ शेख में ये चीज़ नहीं है, उनको तजुर्बा है क्योंकि वो ज़ाती इसमें यानी कि रहे हुए हैं पुराने। आबिद खान भाई साहब और इम्तियाज़ शेख साहब में यहाँ का किरदार किसका बेहतर है? सही, दोनों का बेहतर है। अच्छा, सिटी से हवाले से देखें, आप किससे मुतासिर हैं? सही मेरे तो दोनों हमदर्द हैं। अच्छा, फिर भी इम्तियाज़ साहब मेहरबान है, मेरा उनसे पार्टी भी ऐसे जाती भी, बाकी आबिद खान हो गया, मीर बाबर खान हो गए, जी, जी। ये तो दुनिया को यहाँ को सबको पता है कि भाई ये 2 भाई नहीं है, 3 भाई हैं। सही। तीसरा भाई इनका आगा आशिक खान है, सही। एक आबिद खान हो गया, एक बाबर खान हो गया, तीसरा आशिक खान। अच्छा, उनके साथ हमारे आज का नहीं यानी कि दादा परदादाओं का सिलसिला है। अच्छा, पीपल्स पार्टी का जिक्र हो और आसिफ जरदारी साहब का नाम ना हो बिल्कुल तो ये हो ही नहीं सकता। तो आसिफ अली जरदारी साहब जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब शहीद हुई तो पीपल्स पार्टी कन्वर्ट टू आसिफ अली जरदारी साहब। बिल्कुल। तो आसिफ अली जरदारी साहब ने पार्टी को किस लेवल तक संभाला है? नहीं, मैं तो ये कहता हूँ कि सलाम है हमारे आसिफ साहब को, जिन लोगों ने डूबती हुई नैया जैसे बोलते हैं उसको पार लगाया। क्योंकि आप देखें ना, नहीं मोहतरमा शहीद रानी के पिछले 2 टर्म देखें, उसमें साल 2 साल की हाँ, ऐसे ये हुकूमतें चली, मगर आप उसको जो है जरदारी साहब ने जो नारा लगाया कि भाई हम मुफाहमत चाहते हैं, सही है ना, तो इसमें यानी कि वो इतनी हद तक वो कामयाब गए कि हमारी हुकूमत आप देखें, अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध में तकरीबन 10-15 सालों से हुकूमत चल रही है। यहाँ इन इलाकों में ये चीज़ ऐसे तो नहीं चलती, लाजमी कुछ यानी कि बंदे को बर्दाश्त करना पड़ता है, कुछ सहना पड़ता है। आसिफ जरदारी साहब से हमारे वडेरों ने, सरदारों ने, नवाबों ने कौन कौन सी मुश्किलातें पैदा नहीं की होगी, हर तरह की होगी, फिर भी उन्होंने फेस किया, किसी से भी इंतकामी कार्रवाई नहीं की। हालांकि शहीद रानी का जो कत्ल हुआ उसको भी यानी कि अदालतों पे उस पर छोड़ दिया कि भाई हम उन्हीं से इंसाफ चाहेंगे, जाती कोई हम मुदाखलत नहीं करें। अच्छा, बिलाल भुट्टो जरदारी साहब आप क्या समझते हैं कि वो मोहतरमा वाला ख्वाब, क्योंकि अब सारे गरीबों की उम्मीदें बिलाल साहब पर है, तो क्या वो मोहतरमा वाला ख्वाब पूरा कर पाए? नहीं, देखें नहीं, बिलावल साहब को अल्लाह ज़िंदगी दे, आप ये देखें कि उसको जरदारी साहब का भी जो तजुर्बा है वो बिलावल साहब कर रही है, बिल्कुल मोहतरमा की जो परवरिश थी वो भी है, और दूसरा उसके नाना का जो मिशन था जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद का, उससे भी अभी ये तीनों चीज़ें, चारों चीज़ें आप मिलाएं तो इंशाअल्लाह बिलावल साहब को अल्लाह ने अकल दी है, समझ दी है, और उनको आवाम के साथ जितना जैसे रास्ते में रहेंगे इंशाअल्लाह वो भी कामयाब होंगे। अच्छा सर, जब फिल्म में जितना नुकसान हुआ है पाकिस्तान का, आप क्या समझते हैं कि पीपल्स पार्टी इसको रिकवर करने में कितनी हद तक करना चाहिए? सही, अभी नुकसान तो बताया आपको कि बहुत है, सही नहीं, वो तो अभी इतना रिकवर नहीं हो सकता, मगर वो तिनका जोड़े तो घर बन जाता है। अच्छा, इसी हवाले से आहिस्ता आहिस्ता यानी कि कवर होगा, मगर थोड़ा उसमें टाइम लगेगा। अच्छा आशीष साहब, आप डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मेंबर हैं, आपके जो तक की आवाम है उसकी उम्मीदें आपके ऊपर होंगी, तो आप कितना परतजुस्सु से हैं कि मैं अपनी आवाम के लिए बेहतरी से बेहतरी करूँगा, वो थोड़ा सा बताएं। मेरा तो आवाम के साथ यही मैंने वादा भी किया है, मेरा अपना यानी कि एक दिली जो यानी कि माइंड जो है वो भी है कि भाई जब तक मैं आपकी खिदमत कर सकूं, आपको बेहतर लगूं, ये आप बिठाएं। जिस दिन आप समझें कि आगा आशिक खान आप सही काम नहीं करें, मैंने बोला भाई मैं चेयर छोड़ के मैं आपकी सर पे खड़ा हो जाऊँ, आप फिर दोबारा जिसको भी चुने, मुझे कोई एतराज़ नहीं, मैं भी उसको ही सपोर्ट करूँ। अच्छा आशिक साहब, लास्ट में आप अपनी तरफ से अपने वोटर्स को, अपने आवाम को, अपने चाहने वालों को, अपनी पार्टी को कोई मैसेज देना चाहें? बिल्कुल भाई, ज़रूर मैसेज दूंगा। मेरा पार्टी वर्करों के साथ, अपने वोटरों के साथ और अपने इलाके के हल्के के लोगों को यही मेरा मैसेज है कि मेन चीज़ भाई, गुलामी की ज़िंदगी बहुत हो गई, सरदारी वालों निज़ाम बहुत हो गया, अब
दुनिया पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच रही है, हम अभी तक वहीं यानी कि भटकते रहे, ये यानी कि हमें बर्दाश्त भी नहीं है, ना ही हम उसकी किसी फेवर में। हम बोलते हैं अपना इंडिपेंडेंट, जो आपके लिए भला सोचे आप उसके लिए भला सोचें, यही हमारा मिशन है और यही मेरा लोगों को मैसेज है। और ये मैसेज आपका पहुंचेगा और ये कामयाब कैसे होगा, जब आप अपने में कम्युनिटी पैदा करेंगे, एक दूसरे से मुत्तफिक होंगे और एक के दूसरे के दुख सुख में आप साथी बनेंगे। और दुख सुख में देखें नहीं, दुनिया का सिस्टम है, जब तक आप कम्युनिकेशन यानी कि राब्ते बहाल नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा। राब्ते बहाल होने चाहिए, एक दूसरे के साथ मेल जोल होना चाहिए। जैसे हम साल भर बाहर होते हैं, कहीं भी होते हैं, ईद का दिन होता है कि सारे आके अपने गांव में इकट्ठे होते हैं और ईद नमाज पर गले मिलते हैं। वो क्या सिस्टम होता है? यही सिस्टम होता है कि एक दूसरे का हाल हवाल हम तक पहुँचे। तो इसी तरह से आज ये मीडिया के तवक्को से उनके थ्रू मेरा भी ये आपके तरफ मैसेज है कि आप अपना जीना सीखें, क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिलती है और उसी को आप हंसी खुशी किसी के काम आए, ज़िंदगी को हसीन करके गुजारें, ना कि किसी का कैदी बन के मखलूक ज़िंदगी, इसमें कोई भी फ़ायदा नहीं। तालीम को मेरा यही मैसेज है कि तालीम को तरजीह दें। सेहत की तरफ आप जब तालीम आपको शऊर आएगा, आपकी ख्वाहिश बढ़ेगी। क्या ख्वाहिश बढ़ेगी कि भाई हमें जो है सेहत भी चाहिए, हमें एजुकेशन भी चाहिए, हमें अमन अमान भी चाहिए। दुनिया आज देखिए हमारे इलाके कहाँ अमन अमान की सूरत में देखें कहाँ पर चले गए। ये किस वजह से? सिर्फ जहालत की वजह से। जब जहालत हम लोगों में से दूर हो जाएगी, शऊर आ जाएगा तालीम, तो हम चीज़ यूँ हाथ फैला कर किसी से नहीं मांगेंगे, हम वो चीज़ उगले से छीन भी सकेंगे। वो किस चीज़ पे छीनेंगे? तालीम की बुनियाद, क्योंकि वो हमारा जायज़ हकूक़ है हमारे, और जायज़ हकूक़ हमारे को मिलने चाहिए। यही सब लोगों को मेरा भाइयों को मैसेज है। यही इस चीज़ को यानी कि आप ऐसे समझें कि ये हमारा एक मिशन है, और मिशन में अपने आप उसको कामयाब करें जो आपके बारे में सोचे। ये नहीं कि सिर्फ वो अपनी ज़ात के बारे में सोचे कि भाई मैं जीत के जाऊँ, ऐवानों में पहुँच जाऊँ, बड़ी गाड़ियों में बैठूँ। ना, वो बड़ी गाड़ी से उतरे, मगर जब भी आपके साथ बैठे तो ऐसा महसूस होगा कि भाई ये अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना होस्ट इमाम ज़िंदगी प्रोग्राम आज की शख्सियत है। कोई ऐसा आपका कोई वाक़या? Death of my brother. उन माण्हू खे ज़िम्मेदारी ॾिनी वई आहे जंहिं माण्हू जो सिंध जहिड़े नमूने सां आदरभा करे रही आहे। उहो अरबाब साहब खे बि मालूम आहे, पीटीआई खे बि मालूम आहे। तो आपको अपना जहन और सब्र बहुत ज़रूरी है। उन रबाब जो ऐं हिन वक़्त ताईं उहा न्याणी जेका आहे सो कोर्टुनि ऐं अदालतुनि जा पहिरें उघाड़े चकर थी काढे।